evening. Today I have discussed the topic memory allocation. Myself, Dr. Ravi Roshan. Today I have discuss what is memory allocation, what are the difference between the statics and dynamic memory allocation, and why do you use, and in operating what are the memory management system, and fixed allocations, heap and stack, and different type of the possibility. How to the flow of the data. 60% of software performance issue retrieve to memory management, and memory allocations is a essential process and management how data is stored and accessed during program execution. It impact performance, program stability, and resource utilizations. What is a memory allocations? Memory allocations, data storage management process is reserve portions of computer memory of data storage during program resource sharing program foundations. The memory hierarchy. Memory is a smallest unit is a register. Then after cache memory, RAM, and standard storage. Register is a smallest memory device. It is a very fastest and smallest capacity. Cache memory is a very fast and it is a limited size. RAM is a fast access and moderate capacity. Secondary memory is a slower and largest capacity. Type of the memory management allocation: static allocations, dynamic allocations, stack allocations, and heap allocations. What is the static allocations? Static allocations, memory size is a fixed at compile time. Dynamic allocations, memory size is a determined to run time. Static allocations, automatic allocations with a function level scopes but limited to local variable and parameter. Heap allocations, manual and garbage collected duration, flexible for complex data structure for slower access. Static memory allocations. Static memory allocations, there are the so many terminology, just like the compile time allocations, fixed size, stack based, and perfective usage. What are the stack time allocation? Memory in a stack memory compile time allocations, fixed memory allocation in fixed size, and static memory allocation is a stack based, and static memory allocations is predictable usage. Dynamic memory allocation, there are the comparison. Dynamic memory allocation is a runtime allocations, and dynamic memory allocation is a variable size, and dynamic memory allocation is a heap memory, and dynamic memory allocation is in a manual management. And a stack versus heap, a stack memory and heap memory. A stack memory LIFO structure for automatic management. A stack faster access and continuous allocations, limited size but prescriptive behavior. A static memory is used to the function calls and local variable. Heap memory is dynamic memory pool equal in manual management. Heap memory is slower due to the fragmentation issue, and heap memory is a larger capacity with flexible size, and heap memory uses for the object a complex data structure. Just आपको memory dynamic memory management in C. There are the so many function, malloc function, calloc function, realloc function, free function. Malloc function allocate a specified byte or unutilized memory from the heap space. Calloc allocate memory and initialize all bytes to 0 for clean start. Realloc function resize previously allocate memory back to the new specified size, and free function is used to the release allocate memory back to system to prevent memory leaks.
Memory allocations in object oriented programming. In Java programming language, it is used to the garbage memory management. C++ is used to the pointer to the, and Python to explore the automatic allocations with the reference counting and REST language. Automatic versus the manual memory management. Manual management like C++ explicit allocations, and automatic management like Java, Python or garbage collection. It is a reduced programming error but impact performance during the cleanup system. In these slides, garbage collection method discuss. There are the so many reference counting, markup, sweep, general collection and concurrent collection. Memory allocations challenge. There are so many challenge: fragmentation, memory leaks, developing pointer, buffer overflow, fragmentations, internal and external fragmentation wasted the available memory space over time. Memory leaks, failure to deallocate memory causes garbage and issue. Memory allocation strategy: fit strategy, best fit strategy, burst fit strategy, Bradley strategy. First fit strategy: select first available space for the recommendation request. Choose a smallest available space that fit request. Use first largest available space the choose space. And virtual memory is there are so many types: memory extension, process insulations, paging system, swapping mechanism. Memory extension, just like the use the disk space to extend physical memory capacity beyond RAM limited. Process isolation provide protection between the process through the separate address space. Paging system divide memory into fixed size blocks for efficient management. Swapping mechanism move inter process between RAM and storage. Memory management unit. There are so many memory management: hardware translation, memory protection, advanced features, OS integrations. Memory protections provide isolation and security during running process. Convert virtual address to physical memory address automatically. Enable copy on write and demand paging for efficiency. Critical component for modern operating system. Memory allocation in operating system. Management level, system level and application level. Memory management, kernel reliability, continuous memory management for system stability, process isolations, complete separate for process address space. Memory allocation performance consideration: allocation speed, fragmentation impact, cache locality, time versus space. Just this is a use. And modern memory management, there are the memory pools, region based allocation, custom allocation, log free system. There are the modern memory management. Debugging memory issue, there are the so many memory profiles, leak detection, address synchronizer, advising tools. And future of memory allocation: emerging technology, advanced technology. Emerging technology is discussed to the perspective memory, blocks storage and memory boundaries. देखिए मेरा ये लास्ट 3 मिनट में जो बोलता हूँ वही आपको समझ में सारा आ जाएगा। मैंने देखिए हम क्या होता है बेसिकली मेमोरी एलोकेशंस में मैं डिस्कस करता हूँ मेमोरी का डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, और हमारा स्टैटिक मेमोरी क्या है, डायनेमिक मेमोरी क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा फ्रेगमेंटेशंस क्या हो रहा है, मतलब मेमोरी एलोकेशंस के बारे में। ऑटोमेटिक स्टैक का क्या यूज है, क्यूब का क्या यूज है, हीप का यूज क्या है, और हमारा ये सारा हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे पहले व्हाट इज द मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, जहाँ पे स्टोर डेटा होता है उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देयर आर ये हमारा जो मेमोरी जहाँ पे स्टोर होता है एज ए डिवाइस होता है, जैसे फास्टेस्ट ये सीपीयू जिसको रजिस्टर बोलते हैं, एच मेमोरी होता है, रैम होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो रजिस्टर मेमोरी के अंदर में फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैपेसिटी सबसे होता है। ये जो कैचे उससे ज़्यादा ऊपर होता है, ये इसका रेंज होता है, ये बहुत स्पीड जाता है, रैम भी स्पीड होता है, इसका फिक्स साइज होता है। ठीक है,
टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशंस देयर आर द सो मेनी होता है, स्टैटिक, डायनेमिक, स्टैक एंड हीप। स्टैटिक एलोकेशंस में क्या होता है, ये कंपाइल टाइम में होता है, डायनेमिक रन टाइम होता है, स्टैक होता है ऑटोमेटिक एलोकेशंस में होता है, हीप में गार्बेज में होता है। ये याद कर लीजिए आप। स्टैटिक में मैं बता रहा हूँ, ये इसमें स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स में है कंपाइल टाइम एलोकेशन, फिक्स साइज होता है, स्टैक बेस्ड होता है, गार्बेज होता है। मेमोरी रिजर्व होता है, प्रोग्राम इज कंपाइल बट ड्यूरिंग नॉट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस जो होता है रन टाइम होता है। फिक्स साइज है तो हम जो बोलेंगे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, उसमें हो जाता है वेरिएबल साइज। वही बोलेंगे तो इसमें हीप बेस्ड हो जाएगा, मतलब डायनेमिक में देखिए यहाँ पे लिखे हुए डायनेमिक बेस्ड मैनुअल मैनेजमेंट होता है। देखिए स्टैक वर्सेस हीप, जो ऑटोमेटिक जो हो रहा है ना वो है, तो लास्ट इन फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर ऑटोमेटिक मैनेजमेंट, फास्टर एक्सेस विद कंटिन्यूअस एलोकेशन, लिमिटेड साइज बट परस्पेक्टिव बिहेवियर। हिप मेमोरी में मेमोरी पूल मैनेजिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, स्लोअर एक्सेस टू फ्रेगमेंट इशू होता है, लार्जर कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सी लैंग्वेज में जो एमएलॉग के हेडर फाइल के अंदर में हमारा 4 गो फंक्शन होता है जो प्री डिफाइंड होता है, जो हमारा डायनेमिक मैनेजमेंट में एमएलॉग इसको बाइट द यूटिलाइज मेमोरी फ्रॉम हीप स्पेस, एलोकेट मेमोरी टू इनिशियलाइज ऑल बाइट टू 0 फॉर क्लियर स्टार्ट, रिसाइज प्रिवियसली रीएलोकेट मेमोरी बैक टू द न्यू स्पेस, फ्री रिलीज एलोकेट बैक टू सिस्टम टू प्रिवेंट मेमोरी लीक्स। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में होता है। तो मेमोरी कैसे कैसे हमारा एलोकेट होता है वह बता रहा है। जैसे हमारा आ जाइए C++ में, तो न्यू डिलीट ऑपरेशंस, स्मार्ट पॉइंटर और कंट्रोल एलोकेशन। जावा में जब हम पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मेमोरी क्रिएट होता है। तो ये जो ऑपरेटर विथ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन फॉर मेमोरी। पाइथन में क्या होता है, ऑटोमेटिक एलोकेशंस, रेफरेंस काउंटिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ऑटोमेटिक वर्सेस द मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, मैनुअल मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक मैनेजमेंट। मैनुअल में सी रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट एलोकेशंस होता है, और पाइथन और जावा में क्या होता है, गार्बेज कलेक्शंस होता है। और इसमें क्या होता है, ऑफर द कंट्रोल बट रिक्स मेमोरी होता है। गार्बेज में हम बता रहे हैं रेफरेंस कोडिंग और ट्रैक नंबर ऑफ रेफरेंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, एलोकेट वन द मार्कअप स्विच होता है। ये सब होता है पॉइंट मेमोरी एलोकेशन। देखिए मेमोरी एलोकेशन चैलेंज होता है, एक फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे फिक्स साइज है और हमें मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें कुछ बच गया, जैसे 200 MB का है और उसमें हमारा 64 बिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो बीच में जो बचा ना, तो उसी को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, बाहरी एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बेस्ट अवेलेबल मेमोरी स्पेस ओवर टाइम। अच्छा, एक मेमोरी लीक्स होता है, जैसे डीएलोकेट मेमोरी कोज द, मतलब इसमें सिक्योरिटी का बफर होता है। जैसे राइटिंग बिलोंग एलोकेट स्पेस करप्ट एडजस्ट मेमोरी एंड क्रिएट सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है। डेलिंगिंग पॉइंटर होता है, डिफरेंस टू फ्री मेमोरी एलोकेशंस कैन यूज द एंड प्रीटेड प्रोग्राम बिहेवियर होता है। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, ब्रस्ट फिट एंड बॉडी फिट। फर्स्ट फिट का होता है सिलेक्ट फर्स्ट अवेलेबल स्पेस फॉर रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट होता है। बेस्ट फिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट अवेलेबल स्पेस फॉर फिट रिक्वायर्ड होता है। ब्रस्ट फिट क्या होता है, यूज द लार्जेस्ट अवेलेबल स्पेस फॉर एलोकेशंस होता है। और बॉडी सिस्टम में क्या होता है, पावर एवलोट साइज होता है। वर्चुअल मेमोरी, ये जैसे हमारा जो लिमिट है, जैसे 15 GB हमारा कहाँ पे है, स्पेस है, मतलब ऑनलाइन ड्राइव में गूगल का कैपेसिटी 15 GB होता है, मतलब जीमेल उमेल का। तो उसमें हमारा जब तो वर्चुअल मेमोरी हो गया, मेमोरी एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन उसमें हमको ज़रूरत है तो पेड करके होते हैं। तो यूज डिस्क स्पेस टू एक्सटेंड फिजिकल मेमोरी कैपेसिटी बियॉन्ड द रैम, मतलब जो हमारा जैसे हमारा मोबाइल में उसकी ज़रूरत है वही है। प्रोसेस इंस्टॉलेशंस, जैसे रैम से भी बढ़ के कभी कभी उधर होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन बिटवीन द प्रोसेस थ्रू द सेपरेट एड्रेस हो गया, स्वैपिंग हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आ गया। देयर आर द 4 टाइप ऑफ द मैनेजमेंट यूनिट होती है, हार्डवेयर ट्रांसलेशन, मेमोरी प्रोटेक्शन, एडवांस फीचर एंड OS इंटीग्रेशन। हार्डवेयर ट्रांसलेशन क्या है कि वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑटोमेटिकली। जैसे देखिए हमारा जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो कन्वर्ट होता है, मतलब फिजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस एड्रेस बोलते हैं। दोनों का जो एड्रेस होता है सेम होता है। तो यही है कन्वर्ट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। मेमोरी प्रोटेक्शंस है, जो आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी बिटवीन दी रनिंग प्रोसेस होता है, ये होता है। मेमोरी एलोकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम है,
दो है, देखिए मैनेजमेंट लेवल है, सिस्टम लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर है, दो टाइप का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब है प्रोसेस आइसोलेशंस, जैसे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्रोसेस एड्रेस स्पेस, मतलब और एक है कर्नेलिटी, जैसे कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट फॉर सिस्टम 2400 टैब होता है, ठीक है। मतलब दो तरह के सिस्टम बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट 100% होता है, और जो कर्नल जैसे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है 24/7 आवर वर्क करता है, ये बता रहे हैं। मेमोरी एलोकेशन परफॉर्मेंस में एलोकेशंस स्पीड देखते हैं, फास्ट एलोकेशंस एंड डी एलोकेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट ओवरऑल एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेगमेंटेशन इम्पैक्ट मेमोरी फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस अवेलेबल स्पेस ओवर टाइम एंड डिगेट सिस्टम। कैचे लोकेलिटी मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स इफेक्ट कैचे टाइम वर्सेस स्पेस ट्रेड ऑफ बिटवीन द एलोकेशंस स्पीड मेमोरी यूटिलाइजेशंस एंड एफिशिएंसी। मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक 4 तरह के होते हैं, मेमोरी पूल, डिजाइन बेस्ड एलोकेशन, कस्टम एलोकेशन, लॉक फ्री सिस्टम, ठीक है। अब डिबगिंग मेमोरी इशू, मेमोरी प्रोफाइल, लीक प्रोटेक्शन, एड्रेस स्ट्रेटनाइजर एंड एनालिसिस टूल्स। देखिए हम मॉडर्न में क्या होता है, प्री एलोकेट मेमोरी चंक रिड्यूस एलोकेशंस ओवर टाइम इम्प्रूव परफॉर्मेंस होता है। एक है रीजन बेस्ड एलोकेशन, जैसे ग्रुप ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर लाइफ टाइम टुगेदर फॉर इफिशिएंट बल्क डी एलोकेशन स्ट्रेटजी। कस्टम एलोकेशन में स्पेसिफाई एलोकेशन यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक वर्कलोड एंड एप्लीकेशन रिक्वायर। फिर जैसे जैसे हम कोई लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, वही रूल्स है कि ये रीजन्स बेस्ड आ गया, ये हमारा जैसे हमारा एक है कि सर्वर ये 200 GB है, तो ये मेमोरी पूल्स हो गया, यही सब प्रोसेस। डिबग मतलब रिटर्निंग के प्रोसेस है, मेमोरी प्रोफाइल्स, लीक डिफेक्टर, एड्रेस सिंक्रोनाइजर, ओके। अब फ्यूचर ऑफ मेमोरी एलोकेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट एलोकेशन पैटर्न इंफिनिटली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड इम्प्रूव सेफ्टी गारंटी, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज डेवलपर, ओके। मैं बता दिया। थैंक यू वेरी मच वाचिंग द वीडियो।